Hello everyone, this is Shivangi Singh from Babu Banarsidass Institute of Technology and Management. We are dealing with the subject material testing and construction practices. In this, we are discussing about Unit 1 and Lecture 4. Contents of this lecture is first, gypsum, second, properties of gypsum plaster, third, building products made of gypsum and their uses, fourth one is cement, fifth one is process of manufacturing of cement, and last one is types of cement. So, what is gypsum? Gypsum is a soft sulfate mineral composed of calcium sulfate dihydride with the chemical formula CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O. ये किसका फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप जिप्सम को डिफाइन करेंगे तो हमेशा उसका केमिकल फॉर्मूला ज़रूर लिख देंगे. इट इज़ वाइडली mined and is used as a fertilizer as the main constituent in many forms of plaster, blackboard, sidewalk, chalk and drywall. A massive fine-grained white or lightly tinted variety of gypsum called alabaster has been used for sculpture by many cultural building, ancient Egypt, Mesopotamia, ancient Rome and Byzantine Empire and the Nottingham albasters of medieval England. Gypsum also crystallizes as translucent crystals of selenite. It forms as an evaporite mineral and has a hydration product of anhydrite. Gypsum बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है. ठीक है, अगर आप बहुत डिफरेंट जगह पे अगर आप घूमते होंगे तो आपको कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पे जिनके कंस्ट्रक्शन में आपको जिप्सम का यूज़ देखने को मिलेगा. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिप्सम प्लास्टर की? इट इज़ लाइट वेट एंड हेंस इट्स यूजेस फॉर प्लास्टरिंग डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रक्चरल लोड ऑन द बिल्डिंग. जिप्सम प्लास्टर डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस अनलाइक सीमेंट प्लास्टर. इट इज़ लेस प्रोन टू क्रैक्स, मतलब इसमें क्रैक्स बहुत कम आते हैं. ठीक है. Gypsum is non-combustible and contains high content of crystal water. In the event of fire, it acts like a barrier and protects the blockwork, concrete and steel. Gypsum plaster prevents rusting of metal fittings like pipes and increase their durability. Gypsum plaster has low thermal conductivity and ensures energy and power saving. Gypsum plaster gives high tensile and flexural strength. After the plaster is properly set and the plaster backing and background are dry, it is possible to paint gypsum plaster with any type of paint except cement paint. जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिप्सम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, कि जिप्सम में बहुत ही कम क्रैक्स, नॉन कंबस्टिबल होते हैं. ठीक है, prevents rusting of metal fittings like pipes and increases their durability. ठीक है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिप्सम की वो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. बिल्डिंग प्रोडक्ट्स मेड विद जिप्सम एंड इट्स यूजेस. प्लास्टर बोर्ड हम लोग बना सकते हैं जिप्सम से. जिप्सम फाइबर बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड क्या होता है? इज़ यूज्ड फॉर पार्टीशंस एंड द लाइनिंग ऑफ वॉल्स, सीलिंग, रूफ्स एंड फ्लोर्स. प्लास्टर बोर्ड can be tailored to meet specific requirements, is non-combustible and has the ability to resist shock and humidity. Gypsum is a vital ingredient in modern plasterboard. Gypsum fiber board. Gypsum fiber board is used for partition and the lining of walls, ceiling, roofs and floors. Standard gypsum fiber board is soundproof as well as being good at resisting shock and humidity. नेक्स्ट डेकोरेटिव प्लास्टर. आप लोगों ने अपने वॉल की मतलब जितनी भी जो सीलिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने प्लास्टर का वर्क देखा होगा. ठीक है, तो डेकोरेटिव प्लास्टर जैसे कि इस टॉप पे जहाँ पे स्लैब, जहाँ पे सीलिंग है, वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो वर्क हैं, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये किससे हैं?
जिप्सम प्लास्टर से हैं। किससे? जिप्सम प्लास्टर। ओके। Dehydrated plaster powder mixed with water is used to line brick and block walls and ceilings as well as for elaborate and beautiful decorations. मतलब decorations के लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं जिप्सम प्लास्टर को, और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में ये डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज़ भी होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ब्लॉक्स मेड विद जिप्सम। आप लोग देखते होंगे कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ डिज़ाइन है, कुछ जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो किससे बनी होती हैं? जिप्सम प्लास्टर से बनी होती हैं। किसी भी मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम प्लास्टर को, उसका जो लिक्विड है उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर कुछ टाइम तक उसको ड्राइंग के लिए रखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग मोल्ड से उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को बाहर निकाल लेते हैं। तो प्लास्टर ब्लॉक मेड विद जिप्सम। Gypsum blocks are used for indoor partitions and gypsum tiles are for ceilings. Gypsum blocks are easy to install quickly. They are used in particular for walls that need to provide a high level of passive fire protection. Gypsum based self leveling screed, कोई भी अगर फ्लोर है उसमें लेवलिंग के लिए हम लोग स्क्रीडिंग करते हैं। किससे? जैसे कि दिस मैन विद दिस पाइप, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग जिप्सम से क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फ्लोर पे लेवलिंग के लिए, लेवल्ड सरफेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जिप्सम स्क्रीडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिप्सम स्क्रीडिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो सीमेंट है। सीमेंट क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल विद कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या है, सीमेंट क्या होता है? पॉपुलर एज बिल्डिंग मटेरियल, मटेरियल विद एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज टू बाइंड द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट टुगेदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीमेंट को कंक्रीट वगैरह में यूज़ करते हैं बाइंडिंग, एज अ बाइंडिंग मटेरियल टू फिल वॉइड्स इन बिटवीन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास। रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं जो कि हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं? फर्स्ट क्या है हमारे पास? बॉक्साइट है। Bauxite is a member of chemical family metallic hydroxide/oxide. This is a natural occurring sedimentary rock, non-chemically treated and contains one or more aluminum hydroxide minerals. The vast majority of all mined bauxite is used for aluminum metal manufacturing. Application क्या होती है इसकी bauxite की? Bauxite is a rich source of aluminium as a raw material in the manufacturing of Portland cement. Portland cement में as a raw material हम लोग bauxite को use करते हैं। Next is bottom ash. Most bottom ash results from the burning of pulverized coal in suspension in the modern utility boiler used in coal-fired power plants. The heavier ash particles fall to the bottom of the boiler, bottom ash, and the lighter particles remain in the gas stream and are usually collected in an electrostatic precipitator as fly ash. The bottom ash is often flushed from the boiler bottom with water and collected in settling basin
from which it can be recovered. Next है हमारे पास clay. Clay is important raw material of cement. Kaolin clay is a natural, usually white or tan material produced by the chemical weathering of aluminum silicate minerals like feldspar. It is widely used after calcining as a primary ingredient in the manufacturing of China. Fly ash. Fly ash is a byproduct of power generation industry obtained by the mechanical और electrostatic precipitation. जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जहाँ पे भी पावर जनरेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली अकर होता है क्या, फ्लाई ऐश, जिसको हम सीमेंट में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. पाउडरी मटेरियल डिराइव फ्रॉम द कंबस्शन गैसेज इन द बॉयलर फीड with pulverized coal. They are made of spherical vitreous particle and may have pozzolanic properties. ठीक है. फ्लाई ऐश को हम लोग किस में, ब्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं एंड सीमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हम लोग किन किन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं. फर्स्ट हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्शन. Materials are extracted, quarried, recovered and transported to the cement plant. जितने भी जो हमारे अभी हमने मान लीजिए रॉ मटेरियल्स की जितनी भी बात करी है उनको क्या किया जाता है, क्वेरीड किया जाता है, मतलब कि उनके ओरिजिन से जहाँ पे वो होंगे वहाँ से उनको क्वेरीड किया जाता है, रिकवर्ड किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है. कहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे भी सीमेंट बनने वाली है. ठीक है. क्रशिंग एंड मिलिंग. The raw materials like limestone, shale, silica, iron oxide are crushed and milled into fine powders. ये जितने भी materials हैं आपके, limestone, shale, silica, iron oxide, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, क्रश करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में इसको क्रश किया जाता है. ठीक है, पाउडरी फॉर्म में. देन इनको मिक्स करते हैं हम लोग. मिक्सिंग एंड प्री हीटिंग, मतलब इन सबको हम लोगों ने पहले तो क्रश किया, आफ्टर दैट कौन सा प्रोसेस होता है, मिक्सिंग एंड प्री हीटिंग का प्रोसेस. द पाउडर्स आर ब्लेंडेड इन ब्रैकेट रॉ मील एंड प्री हीटेड टू अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड. जितने भी ये पाउडर्स जिनको हम लोगों ने क्रश किया है, लाइमस्टोन एंड सिलिका, आयरन ऑक्साइड, इन सबको हमने क्रश करके फिर क्या किया है, ब्लेंड किया है और इसको हीट करेंगे हम लोग कितने, अप्रॉक्सीमेटली 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट करेंगे. Using the hot gases from the kiln, the preheating burns of the impurities. 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बर्न करने पे क्या होता है, जो impurities प्रेजेंट होती हैं इन सब में वो क्या होती हैं, हट जाती हैं. नेक्स्ट, हीटिंग प्रोसेस. The material is burned in a large rotary kiln at about 1500 centigrade. Heating starts the decarbonation where carbon dioxide is driven from the limestone. The partially fused resulting is known as clinker. A modern kiln can produce around 6,000 tons of clinker a day. CaCO3 limestone, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस हीट, हमें क्या मिलता है इसके बाद, CaO. ठीक है. CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइम, प्लस CO2. ओके, सो दिस इज द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट which named as cooling and final grinding. In this, the clinker is then cooled and ground to fine powder in a tube or ball mill. A ball mill is a rotating drum filled with steel balls of different sizes that crush
and grind the clinker. Gypsum is added during the grinding process to provide means for controlling the setting time. Gypsum को हम setting time को manage करने के लिए add करते हैं. The cement is back transport for the concrete production. इस process के बाद cooling and grinding के बाद हम सीमेंट को ट्रांसपोर्टेशन और जहाँ पे यूज़ करना है सीमेंट को वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं जो 5 प्रोसेसेस हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के. उसके फर्स्ट है क्वेरिंग, जो भी आपके लाइमस्टोन, सिलिका और आयरन ऑक्साइड हैं उनको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. क्वेरिंग मेन ओरिजिन से लाते हैं, देन आपका सेकंड क्रशिंग करते हैं उसकी, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. थर्ड आपका प्रोसेस है यहाँ पे हम रोटरी क्लीन में लाते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, ठीक है. फिर फिफ्थ जो आपका है कूलिंग एंड फाइनल ग्राइंडिंग में, और यहाँ पे हमें अपना पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है, ठीक है. इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं. फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%, ये सीमेंट में प्रेजेंट होता है. देन सिलिका SiO2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 to 25%. देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 4 to 8%. देन फेरस ऑक्साइड 2 to 4%. एंड लास्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 to 3%. ये कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है. आप लोगों को ये कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जब आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाए तो एज इट इज़, कभी कभी आपसे एवरेज वैल्यू पूछ ली जाती है, कभी कभी आपसे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो 60 to 65% होता है, ऐसे सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड तक. ओके. नेक्स्ट है आपका पास बोक कंपाउंड एंड देयर इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ. बोक्स ने उन्होंने कुछ 4 कंपाउंड के नाम बताएं सीमेंट में, जो कि डिफरेंट रोल प्ले करते हैं सीमेंट की स्ट्रेंथ पे. फर्स्ट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है 3CaO SiO2. परसेंटेज होता है 50 to 60% सीमेंट में, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंट्रीब्यूट टू 50 to 60% ऑफ स्ट्रेंथ. सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट 7 days इज़ बिकॉज ऑफ C3S, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो 7 days स्ट्रेंथ है वो हमें मिलती है, प्रोड्यूसिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2, इसका केमिकल फॉर्मूला है. कॉम्पोजिशन होता है इसका 20 to 45%, एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एट लेटर स्टेज, दैट इज आफ्टर 7 days to 1 year. Important for hydraulic structures as well as bridges. Tricalcium aluminate 3CaO.Al2O3. 3CaO.Al2O3 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का. परसेंटेज होते हैं 8 to 12% इन सीमेंट. देन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज बिकॉज ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, अवॉइड्स द कोरोजन ऑफ स्टील रीबार्स, मेक इट प्रोन टू सल्फेट अटैक इन इन्वायरमेंट्स रिच इन सल्फेट्स. सल्फेट अटैक वगैरह से किसी भी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बचाता है. नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है, एल्यूमिनोफेराइट. इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो 4CaO.Al2O3.Fe2O3, 4CaO.Al2O3.Fe2O3, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट. परसेंटेज होता है 6 to 10% इन सीमेंट. जिसकी करेक्टरिस्टिक हैं वो हैं 8 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ लोअर क्लिंकरिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट है एक्ट्स एज अ फिल्टर सीमेंट,
दिस सीमेंट इट्स ग्रेस टिंट कलर। ओके, तो ये 4 हमारे पास बोक्स कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको एज इट इज़ इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। फर्स्ट है आपके पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेकंड क्विक सेटिंग सीमेंट, थर्ड वन इज हाई एल्यूमिना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं जो जब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो आप लोगों को ये आंसर्स लिखने हैं, प्लस इनके बारे में कि ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन वो आपको एग्जाम्स में लिखना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सीमेंट गेट्स द स्ट्रेंथ फास्टर देन ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो आपके पास होता है, ओपीसी मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है एज कम्पेयर टू ओपीसी, लेकिन जो इसका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम है वो सेम होता है ओपीसी के। ओके, ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स। ये इनिशियल सेटिंग टाइम एंड दिस वन इज फाइनल सेटिंग टाइम। तो जो सेटिंग टाइम है वो ओपीसी एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पहले गेन कर लेती है एज कम्पेयर टू ओपीसी। इट कंटेन्स मोर ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड इज मोर फाइनली ग्राउंडेड। इट गिव्स आउट मोर हीट वाइल सेटिंग आउट, सो इट इज as such unsuitable for massive concrete. It is used for structures which are subjected to loads early like roads, जैसे कि रोड्स वगैरह पे व्हीकल्स को पास करना पड़ता है, इस वजह से जब हम रोड में कोई भी पैच वगैरह पड़ गए हो या उनको फिल करना हो तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं या ब्रिजेस में। नेक्स्ट है आपके पास क्विक सेटिंग सीमेंट। इट सेट्स फास्टर देन द ओपीसी। सेटिंग टाइम क्या होता है इसका? कम होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैंने आपको अभी सेटिंग टाइम बताया है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट्स, लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट का कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है 30 मिनट्स। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट दैट इज रिक्वायर्ड टू सेट अर्ली एज फॉर लाइंग अंडर वाटर or in running water. Initial setting being very little, there is always the danger of concrete having undergone its initial setting. Thus, this type of cement is used in more special cases. जो अंडर वाटर हैं यहाँ पे जहाँ पे पानी वगैरह का फ्लो हो रहा होता है वहाँ पे मोस्टली हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लो ऑफ वाटर को किसी भी वजह से हम लोग रोकते हैं, फिर उसके बाद जब इसका सेटिंग कंप्लीट हो जाता है, जो कि सेटिंग टाइम इसका बहुत कम है 5 मिनट्स इनिशियल एंड 10 मिनट, वो 30 मिनट्स फाइनल सेटिंग टाइम है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अंडर वाटर और इन रनिंग वाटर के केसेस में। नेक्स्ट है हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द बर्निंग ऑफ बॉक्साइट ओर एंड लाइमस्टोन इन करेक्ट प्रोपोर्शन एंड एट हाई टेम्परेचर। The resulting product is then ground finely. It develops strength rapidly. It is black color and resists well the attack of chemicals, especially of sulfates and seawater. Its ultimate strength is much higher than OPC. ये important point है कि इसकी जो strength है वो OPC ordinary Portland cement से ज़्यादा होती है। Its initial setting takes more than 2 hours and final set takes place immediately thereafter. जो initial setting time है वो तो 2 घंटे है, लेकिन final setting time just after 2 hours हो जाती है, ठीक है। Most of the heat it gives in the first 10 hours. As a result, it can be conveniently used in freezing temperature.
Portland slag cement next. It is obtained by mixing clinker, gypsum and granulated slag in a proper proportion. The properties of this cement is very similar to that of OPC, which are as under. It has lesser heat of hydration and has better resistance of soil, sulfates of alkali metals, alumina and iron. This type of cement is mostly used in marine works. पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को हम लोग मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? मरीन वर्क में यूज़ करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लो हीट सीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि हीट इसमें कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द हीट जनरेटेड बाय सीमेंट वाइल सेटिंग में कॉज द स्ट्रक्चर टू क्रैक इन केस ऑफ कॉन्क्रीट। दिस हीट जनरेशन इज कंट्रोल्ड बाय keeping the percent of tricalcium silicate and that of tricalcium aluminate is low। जो अभी हमने आपको बोक्स कंपाउंड बताए हैं उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो मोस्टली किन की वजह से होती है? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से, जो कि लो हीट सीमेंट को जब हम लोग बनाते हैं तो इन दोनों का प्रोपोर्शन हम लोग कम कर देते हैं। Its initial setting and final setting times are nearly the same as those of OPC। जो initial and final setting time है लो हीट सीमेंट का, जो कि हमने आपको बता चुका है कि OPC के बराबर होता है, मतलब कि initial setting time and same as final setting time किसका? लो हीट सीमेंट का। सेम होगा कितना? 30 मिनट्स एंड 10 आवर्स, जो कि OPC के बराबर होता है। It is not very suitable for ordinary structures because the use of cement will delay time of drying। It will also need more curing। मतलब जो क्योरिंग होती है वो हमें इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, इट इज़ द OPC मिक्सड with some air entraining agents. The common air entraining agents are oil, fats and fatty acid। जितने भी अभी हमने इससे जस्ट पहले सीमेंट के टाइप्स बताए हैं वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड वाइट सीमेंट, it is the cement of pure white color and having some properties as those of ordinary Portland cement. Grayish color of cement is due to iron oxide. White cement is manufactured from chalk and clay free from iron oxide। क्योंकि iron oxide ही कलर प्रोवाइड करता है तो हम लोग इसका ही प्रोपोर्शन कम कर देते हैं जिससे कि हमारा सीमेंट कुछ वाइट कलर में हो जाता है। नेक्स्ट सेम हमारे पास कलर्ड सीमेंट है एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट? इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग टुगेदर पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोज़ोलाना। दिस सीमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू OPC एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड फॉर ऑल जनरल पर्पसेस। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ hydration and offers greater resistance to attack of aggressive water and sulfate bearing than OPC। Portland pozzolana cement are particularly used in marine work। It takes a little longer to gain strength। Ultimate strength of this cement is more than OPC। ये कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।